Dear all, celebration of 35th National Eye Donation Fortnight 2020. The National Eye Donation Fortnight is observed every year from 25th August to 8th September. It is a campaign which aims to create mass public awareness about the importance of eye donation and to motivate people to pledge their eyes for donation after death. This year, we are celebrating 35th National Eye Donation Fortnight 2020. Corneal blindness is one of the leading causes of blindness in the world. According to World Health Organization reports, approximately 5% of the world population is blind due to corneal diseases alone. There is a need to bridge the demand and supply gap of corneal tissue, as the only known treatment to corneal blindness is corneal transplant. By donating eyes after death, a corneal blind person can see again through a surgical procedure known as corneal transplantation, whereby the damaged cornea is replaced by a healthy cornea from the eye donor. There are numerous reasons as to why people do not donate their eyes. Lack of awareness among the general public is one of the important cause. Radio Udan presents on this occasion special talk and discussion on this topic by our guest speakers, Dr. Sumit Grover. He is an eminent ophthalmologist, currently is Associate Professor and Program Director at Department of Optometry and Vision Sciences, School of Health Sciences, Sushant University. He will be there along with Professor Monica Chaudhary, Director, School of Health Sciences, Sushant University, Gurgaon. Our guest speakers would take queries regarding the topics like irregular corneas and their management and contact lenses. You can also send your questions in text, audio or video format and your latest report in advance through WhatsApp number 9015173846. I repeat 9015173846. You can even log in to our website for more information, which is www.radioudan.com. Radio Udan, A Flight of Life. Happy listening. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम बहुत स्पेशल, क्योंकि आज आ गए हैं हम 9 बजे। हालांकि मैं 10 बजे आपको इस शो पे रेडियो पे मिलता हूं, लेकिन आज मैं हूं अपने एक और आरजे के साथ, आरजे अंकित के साथ। हम दोनों आ गए हैं आपके साथ और लेकर आए हैं एक बहुत स्पेशल शो। और हम दोनों अक्सर आपके साथ जब आते हैं तो स्पेशल शोज लेकर आते हैं और उन शोज में होता है कुछ बहुत ही अनोखी बातें। या आज हम जो लेकर आए हैं वो आंखों पे हैं। जो आपने प्रमोशनल हमारे मैसेजेस देखे हैं उसमें आपको पता चला होगा कि आज हम जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो बेसिकली आईज को लेके है। 35th आई डोनेशन फोर्टनाइट 2020 सेलिब्रेट कर रहे हैं हम रेडियो उड़ान पे, और इसके रिगार्डिंग हमने आपके साथ जो प्रमोशनल मैसेज शेयर किए हैं, जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इससे पहले आप कैसे हमसे जुड़ेंगे और हमारे जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करें हम, जरूरी है कि हम अपने आरजे को भी बुला लें और दूसरे वाले आरजे के साथ बात करें। यस अंकित, वेलकम टू द शो। गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूँ अनोखा अंकित और आंखें भी अनोखी होती हैं, अनमोल भी होती हैं और इन आंखों से ही हम पूरी दुनिया देखते हैं। बट अगर ये आंखें के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बस वही सोल्यूशन लेकर हम आए हैं आप लोगों के बीच एक स्पेशल शो के माध्यम से। और आई होप आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आंखों से जुड़ी, इस आज के डे से जुड़ी, जो कि आई डोनेशन वीक कहें या डे कहें, वो आपको उसका हम समाधान करके देंगे हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्योंकि हम लोग सिर्फ रेडियो के एक्सपर्ट हैं, आंखों के एक्सपर्ट अलग होते हैं। बिल्कुल, हमें तो ये भी नहीं पता होता कि ये 15 डेज को हम वीक कहें या 2 वीक्स कहें। वैसे तो फोर्टनाइट हमें हमारे जो गेस्ट हैं इनके थ्रू ही पता चला कि फोर्टनाइट है। तो ये 15 डेज का जो एक पूरा एक 2 वीक्स का जो आप फोर्टनाइट कहते हैं, उसमें आप सिंपली इतना समझ सकते हैं कि 25 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक ये होता है। और हम आ गए हैं आपके साथ इस को सेलिब्रेट करने के लिए। अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सिंपली हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN पर हमें कॉल कर सकते हैं। चाहे तो इस पर टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो भी आप हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप स्काइप यूज़र नहीं हैं, सिंपल मोबाइल पे रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल के थ्रू भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल करें मोबाइल नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846। इसी नंबर को व्हाट्सएप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी चाहे तो टेक्स्ट मैसेज या ऑडियो या वीडियो नोट भी आप सेंड कर सकते हैं। साथ में आज क्योंकि हम आइस स्पेशलिस्ट के साथ हैं और उनके साथ आपकी बहुत सारी बातें करवाने वाले हैं, तो अगर आपके पास आपकी रिपोर्ट्स हों तो वो भी आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि हम उनको भी
चेक करके अभी या बाद में आपको रिप्लाई बैक कर सकें। इसके साथ अंकित आपके साथ रहेंगे लगातार फेसबुक पेज पे, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन हमें पोस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पोस्ट करेंगे शो के दौरान तो आपके आंसर्स दिए जाएंगे आपके क्वेश्चंस के। बहरहाल जल्दी से हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हमारे दो जो आज के एक्सपर्ट हैं, और इनके इंट्रोडक्शन बहुत हैवी हैं, तो इनके इंट्रोडक्शंस तो मैं इनसे ही दिलवाऊंगा आपको, क्योंकि इनके नाम के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं अंकित, वो बड़े भारी भारी शब्द हैं और इतना बोझ हम उठा नहीं पाते हम दोनों। तो हमारे साथ सुमित ग्रोवर हैं, ये भी आई एक्सपर्ट हैं। सुमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इनके साथ हमने पहले भी एक शो किया था 2018 में, मुझे याद है, वर्ल्ड साइड डे पे एक शो था जो काफ़ी अच्छा शो रहा था हमारे साथ। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। Thank you, Naresh. Thank you so much. It is indeed a pleasure to come again on Radio उड़ान। मुझे बहुत खुशी है कि 2018 में आई थिंक हमने वर्ल्ड साइड डे मनाया था। Exactly. और आज हम कॉर्नियल डोनेशन फोर्टनाइट आपके साथ मनाने। सो वेलकम, आई वेलकम ऑल द लिसनर्स from various part of the world and thank you so much for having me with you today. इसके अलावा इनके साथ एक और प्रोफेसर हमारे साथ हैं, मोनिका चौधरी, जो सुशांत यूनिवर्सिटी से ही हैं, और मैम पहली बार रेडियो उड़ान को ज्वाइन कर रही हैं। तो मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो में। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए एक ऑनर और प्रिविलेज की बात है, और ऐसे नोबल कॉज के लिए मैं रेडियो उड़ान के साथ जुड़ी हूँ और कई लिसनर्स के साथ एक साथ हम अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे पूरी टीम की तरफ से, हम दोनों की तरफ से, हमारे लिसनर्स की तरफ से। और मोनिका मैम पहली बार आप रेडियो उड़ान से जुड़ रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। सुमित सर का इंट्रोडक्शन तो थोड़ा सा मुझे लगता है वो देंगे एक बार फिर से। बहुत से लिसनर हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं इस टाइम, हालांकि उनसे रिलेट सुमित सर के लिए तो मेरे पास एक क्वेश्चन भी है जो मैंने स्पेशली अपने पास रखा हुआ है। उनसे पिछली बार भी एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था और उनका फिर से एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। मैम कुछ बताएं थोड़ा सा अपने बारे में। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर सुमित ग्रोवर जो है एक ऑफ्थेल्मिक सर्जन है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है, मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और मैंने एम्स से ही ग्रेजुएशन किया था और वहाँ से 20-22 साल मैंने जॉब किया, फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। ओके। मैं वहाँ पे पेशेंट्स ट्रीट करती थी और उसके साथ साथ मैंने एकेडमिक्स भी था, और अब मैं टोटली एकेडमिक्स में हूँ। पिछले 10 साल से मैं पेशेंट्स कम बट टीचिंग ज्यादा करती हूँ। एंड दिस इज माय इंट्रोडक्शन। और ऑप्टोमेट्री के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ऑप्टोमेट्री वो प्रोफेशन है जहाँ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं पहुंच सकते। ये एक प्रोफेशन जो कि प्राइमरी आई केयर मतलब फर्स्ट केयर, जैसे पेशेंट को विजन की प्रॉब्लम हो, ये ऑप्टिशियन नहीं है। सो वी कैन एक्चुअली डायग्नोज, ट्रीट, बट वी कैन नॉट डू एनी सर्जरीज, और सर्जरीज के लिए ऑफ्थेल्मिक सर्जन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। सो कॉन्टैक्ट लेंस और कई ऐसी चीजें हैं जो कॉर्निया ब्लाइंडनेस में ऑप्टोमेट्रिस्ट ट्रीट और मैनेज करते हैं, और उसके बारे में मैं चाहूंगी कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो मैं आंसर कर सकूं। मैं अंकित को भी बात समझ में आई हुई कि इस भारी इंट्रोडक्शन की बातें करता। मैम ने इतने बड़े बड़े शब्द बताए जो हमको वैसे भी नहीं पता थे, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि हम ये सब इतना बोझ हम उठाने वाले नहीं हैं। सुमित सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं अपने बारे में अपने हमारे लिसनर्स को। थैंक यू नरेश। मैं एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, यानी एक नेत्र रोग विशेषज्ञ, और मैं भी पिछले कई साल से आफ्टर माय ट्रेनिंग में कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है। वैसे मेरी जो ट्रेनिंग है वो ग्लूकोमा यानी काला मोतिया के इलाज के लिए है, जो ऑप्थेल्मोलॉजी में सब स्पेशलिटी होती है। अदरवाइज मेरा जो सारा रुझान है वो पिछले 5 साल से वो कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी में है, जो जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग, और मैं कई एनजीओ से जुड़ा हूँ। करंटली मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे सुशांत यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड विजन साइंसेज में, और प्रोफेसर मोनिका जो है सुशांत यूनिवर्सिटी में हेल्थ साइंसेज विभाग के डायरेक्टर हैं। तो हम लोग अभी एक ही संस्थान में काम कर रहे हैं जो सुशांत यूनिवर्सिटी है गुड़गांव में। तो ये है पूरा इंट्रोडक्शन हमारे दोनों आज के स्पेशल गेस्ट का, और मेरे ख्याल से इतना वक्त हो गया कि हम बिल्कुल शो को स्टार्ट कर सकते हैं। और सर सबसे पहले आप दोनों से रिक्वेस्ट इतना सा कि हमारे बहुत से लिसनर शायद जिनको ना पता हो आई डोनेशन या नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट
क्या है बेसिकली, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को अगर आप बता दें बारी बारी से। ठीक है नरेश, मैं शुरुआत करता हूँ। नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट यानी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा भी इसे कहते हैं। पखवाड़ा हिंदी में इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 15 दिन तक मनाया जाता है। तो उससे इसका शब्द जो है वो पखवाड़ा आया है। और ये जैसा कि आपने डेट्स बताई, ये उन्हीं 25 अगस्त से 8 सितंबर जो कि 15 दिन बैठते हैं उसमें हर साल मनाया जाता है। और इसका जो मेन पर्पस है वो लोगों के अंदर कॉर्निया डोनेशन और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी जो आंखों की पुतली की वजह से अंधापन है उसके लिए जागरूकता पैदा करना है और उसके प्रति संवेदनशीलता पैदा करना है और लोगों को ये मैसेज देना है, ये अवेयर करना है कि जो कॉर्निया से अंधता, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस क्या है और उसका इलाज जो है वो कॉर्निया डोनेशन से और कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन से संभव है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे कि जो ये कॉर्निया का अंधापन है और उसके इलाज में बहुत बड़ा गैप है। यानी कॉर्नियल डोनेशन से वो गैप पूरा हो सकता है और ये देखा गया है कि कॉर्नियल डोनेशन इंडिया में अभी उतना अप टू द मार्क नहीं है जो कि उसकी डिमांड से मैच कर पाए। तो इसी डिमांड और सप्लाई गैप को कम करने के लिए हर साल ये पर्व मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय पर्व है एक तरीके से। और इस साल भी जो हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री हर्षवर्धन, उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने ये सब मैसेज दिया कि हम एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, हालांकि कोविड-19 संक्रमण से गुजर रहे हैं, पैंडेमिक से, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पैंडेमिक में हम कॉर्नियल डोनेशन की अवेयरनेस को तो नहीं छोड़ेंगे, उसके पखवाड़ा को तो हम मनाएंगे ताकि लोगों में ये संवेदनशीलता और ये जागरूकता हर साल की तरह इस साल भी हो। तो ये इसका रीजन है कि हम ये क्यों मनाते हैं और इसके बारे में डिटेल्स हम सब्सिक्वेंट रेडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस क्या है और इसके मायने क्या है, इसका इलाज कैसे संभव है, वो सब्सिक्वेंट डिस्कशन में हम लोग बता सकते हैं। बाकी प्रोफेसर मोनिका इसमें कुछ बताना चाहें तो। इनफैक्ट डॉक्टर सुमित ने जैसे बताया कि ये एक अवेयरनेस बिल्डिंग एटीट्यूड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और हमारी मेजर जो चैलेंज है कि कॉर्निया लोग डेथ के बाद डोनेशन जो कर सकते हैं, लोगों को ये पता ही नहीं है कि कॉर्निया की डोनेशन की जा सकती है जिससे उनकी पुतली से दूसरे आदमी को एक दृष्टि मिल सकती है। ये प्रॉब्लम अवेयरनेस बिल्डिंग की ही है और अगर किसी को पता भी है कि हाँ शायद ऐसा कुछ होता है कि जिससे कॉर्निया बदल के दूसरे को ट्रांसप्लांट करके विजन दिया जा सकता है, बट प्रॉब्लम ये है लोगों को ये भी नहीं पता कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे उनकी जो रिलेटिव या नेक्स्ट ऑफ किन की जो डेथ हुई है किस तरह से वो उसको कांटेक्ट करे कि कहाँ से वो सपोर्ट करे। करना भी चाहते हुए बहुत लोगों को इसके बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। और लास्ट ये है कि इसमें बहुत सारे मिथ जुड़े हुए हैं। कई लोगों की सोच डोनेशन के बारे में कुछ अपनी ही तरह से है जो कि मिथ्स है, जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है। इस फोर्टनाइट में लोगों से बात करने का मतलब बार बार यही है ताकि ये 15 दिन जो स्पेशली ऑफ कोर्स हम हर समय इसके लिए जब भी पेशेंट से मौका मिलता है बात करते हैं, बट ये 15 दिन हर आई प्रोफेशनल जो है इस पे फोकस करता है ताकि पब्लिक की अवेयरनेस को इम्प्रूव किया जा सके और बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ा जा सके। तो बिल्कुल ये है नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट 2020 सेलिब्रेशन, जो कि 35वां पखवाड़ा इस टाइम हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अराउंड द कंट्री, अराउंड द वर्ल्ड, रेडियो उड़ान के थ्रू। और क्योंकि जैसा सर ने कहा लॉकडाउन चल रहा है, हम सब भी लॉकडाउन में हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह से रेडियो पे जुड़े हुए हैं, सब लाइव एक साथ। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अपने घर से बैठे बैठे तो हमें कॉल करें। हमारी स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर। यस अंकित, कुछ दिमाग में या कुछ आंखें खुली हो तो कोई सवाल मन में आ रहा हो? सबसे पहला मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जैसे कि ग्लूकोमा की भी बात हुई और कोरोनियल की हम बात करें, क्या कोई रिलेशन है इन दोनों के बीच या ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं?
क्योंकि मैं ग्लूकोमा पेशेंट हूँ, तो मैं जानना चाह रहा था, मेरी क्यूरियोसिटी थी। देखिए अंकित, ग्लूकोमा जो है वो बिल्कुल ही एक अलग डिजीज है, वो एक अलग बीमारी है आँख की, जिसके अंदर आँख के अंदर जो प्रेशर है, जिसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जो हमारे रक्त धमनियों यानी आर्टरीज में होता है, वैसा ही प्रेशर हमारा आँख के अंदर होता है, जो एक फ्लूइड एक्सर्ट करता है आँख में। और उस दबाव के ज्यादा बढ़ने से जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, जो हमारी स्नायु तंत्रिका है, उसमें क्षति पहुंचती है और वो खराब होती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे उसमें अंधापन आता है। तो ये ग्लूकोमा है। इसका कॉर्नियल डोनेशन से कोई डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग बीमारी है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में क्या है कि आंखों के आगे जो एक आप देखेंगे, हमारी आंख के सफेद हिस्से के बीच में एक काला गोला है जी। उस काले गोले पे जो एक पतली सी झिल्ली होती है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी झिल्ली, जो कि आप देखें प्याज के छिलके से भी पतली होती है, उस झिल्ली को हम कॉर्निया कहते हैं। अगर किसी कारणवश उस कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी लूज हो जाती है, यानी उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है, कि वो कुछ केमिकल इंजरी हुई, कुछ ट्रॉमा हुआ, कोई तीर कमान लग गया या कोई नुकीली चीज से वो फट गई, इन्फेक्शन हो गए, बहुत सारे कारणों से जो ये कॉर्निया अगर सफेदी आ जाती है तो ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो जाती है। लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बीमारियां हैं। बिल्कुल, तो जैसा सर ने बताया दोनों अलग अलग हैं। और ये सर जो सुमित सर, एक क्वेश्चन जो आपके पास है मेरे ख्याल से, एक ये जो आँखों में वाइटनेस आ जाती है, या वो आप कुछ झाला, मुझे नहीं पता उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, जो वाइटनेस आ जाती है आँखों में, उसके रिगार्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया था आपके पास। जो क्वेश्चन है सोनी तोमर का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। सोनी तोमर हापुड़ यूपी से उनके पास एक क्वेश्चन भेजा हुआ था। उन्होंने पूछा था कि जो आँखों में एक वाइटनेस आ जाती है, पूरी आँखें वाइट हो जाती हैं, अगर उनका उस वाइटनेस को हटाने का कोई इलाज है क्या? नरेश, वो सवाल मैंने उनका सुना, आपने मुझे भेजा था जी। तो सोनी जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, उन्होंने जैसे कि उन्होंने अपने मैसेज में बताया कि उन्होंने एम्स में इसके बारे में पूछा कि आँख की रोशनी आ सकती है या नहीं, तो उनको ये बताया गया कि उनकी ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो गई है, जो आँख की नस जो है दिमाग तक जो दृष्टि पहुंचाती है, तो उनको पता है कि दृष्टि का तो इसमें कोई चांस नहीं है। तो उनका सवाल ये था कि जो आंखों के आगे सफेदी है जी, उसको कैसे वो हटा सकते हैं। तो उसके लिए जो है आजकल प्रोस्थेटिक शेल्स और ऑकुलर प्रोस्थेसिस आते हैं। आई थिंक उसके लिए प्रोफेसर मोनिका जो है उस चीज में स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ऑकुलर प्रोस्थेसिस के बारे में, या जो कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, जिससे कॉस्मेटिक लेंसेज आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को विस्तार से बता सकती हैं मैम। थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर सुमित। अगर इसको ये कंफर्म्ड है कि इनकी आंख में अब ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, और कॉर्निया भी इसे नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि जो पीछे नस है उनके सूख चुकी है, तो अब हमारे पास सिर्फ ये रास्ता रह जाता है कि ये जो सफेदी आंख के अंदर जो काला हिस्सा है गोल, वो वाइट हो गया है, तो देखने में बहुत भद्दा लगता है, और उससे फेस और कॉस्मेटिक अपीयरेंस बहुत खराब हो जाता है। इसको छुपाने के लिए स्पेशल टाइप के कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं, जिसको हम ऊपर दिन में लगा के रात को उतारा जाता है, ताकि उससे देखने वाले को, दूसरे को देखने वाले को वो नॉर्मल आई लगती है, एंड कॉस्मेटिक अपीयरेंस भी बहुत बुरा और भद्दा नहीं लगता है। हाँ, अगर इसकी थोड़ी सी भी रेजिडुअल विजन अगर होती तो देन वो कॉर्निया के ट्रांसप्लांट करके, और नस ठीक होती तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट इनकी विजन को पूरा रिस्टोर कर देता। बट अगर इनको आई एग्जामिनेशन में ये कंफर्म कर दिया गया है कि इनकी नस पीछे सूख गई है, दैट मीन्स अगर कॉर्निया की पुतली बदल भी दी जाए तो जो नस है जो ब्रेन को ट्रांसमिट करती है विजन को, वो नस खत्म है, तो अल्टीमेटली वो ट्रांसप्लांट करने के बाद भी उनकी विजन नहीं वापस आएगी। सो ऐसे केसेस में हम लोग कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कर, जिसमें एटलीस्ट देखने वाले, दूसरे देखने वाले को उनकी आई भद्दी नहीं लगती है, और ये स्पेशल टाइप के कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं जिन्हें प्रोस्थेटिक कॉन्टैक्ट लेंस कहा जाता है। मैडम, इनकी कॉस्टिंग के बारे में क्या बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, ये लेंसेज बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं और इंडिया में ही बनते हैं।
इसकी एवरेज कॉस्ट 2,000 रुपए पर लेंस होती है। अच्छी क्वालिटी के लेंस की बात कर रही हूँ। और ये लेंसेज आमतौर से डिपेंडिंग कि आंख की कंडीशन क्या है 6 महीने से 1 साल तक चलते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें। तो आप अंदाजा करिए, अगर वो हम 6 मंथ्स पे 2,000 रुपीज एवरेज एक पेशेंट को खर्चा हो जाता है इसका, अच्छी क्वालिटी का भी। मैम, इससे जुड़े हुए 1-2 सवाल और भी हैं जो नॉर्मली बहुत से लोगों के लिसनर्स के हैं और जो हमें पिछले कुछ शोज़ में भी मिलते थे। जैसे कि हम जब भी आइज़ को लेके बात करते हैं तो बहुत से लोगों की आइज़ ऐसी हैं जो देखने में नॉर्मल नज़र नहीं आती है। मतलब जैसे कि उनकी आईसाइट लॉस्ट है और उसका कोई ट्रीटमेंट अब अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से। तो जैसे उनकी जो जैसे किसी को इंजरी होती है तो उनकी आइज़ अनशेप्ड हो जाती है। मतलब वो कभी थोड़ा अंदर होगी या बाहर होगी, कुछ इस तरीके से होगा। एक आई और दूसरी आई में जो एक मैच होना चाहिए, दोनों आईज एक जैसी होनी चाहिए, वैसा नहीं होता। एक आई अलग है, एक आई अलग है। क्या उसके लिए भी कुछ ऐसा है कि कोई सर्जरी हो या कुछ ऐसा हो ताकि वो जो हम आप अपीयरेंस की बात करने की अपीयरेंस, कॉस्मेटिक अपीयरेंस जो है वो अच्छी लगे थोड़ी, और आईज देखने में एटलीस्ट अच्छी लगनी चाहिए? बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे केसेस आई हॉस्पिटल्स में आते हैं। कॉस्मेटिकली इसको ठीक करने के लिए ये एक तो कॉन्टैक्ट लेंस मैंने बताया स्पेशल टाइप का, दूसरा आर्टिफिशियल आई जिसको लोग पत्थर की आंख कहते हैं। एक्चुअली वो पत्थर की नहीं बट स्पेशल मटेरियल की आंख होती है जिसपे पूरा, और आजकल तो इतना अच्छा डिजिटलाइज्ड कंप्यूटराइज्ड मैचिंग सिस्टम होता है, उसमें जो ये आंख श्रिंक कर गई होती है उसको इन्यूक्लिएट फ्रंट को करके उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल मटेरियल की आंख लगा दी जाती है। और इतनी अच्छी मैचिंग हो जाती है आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम से और कलरिंग से कि देखने वाले को कई बार पता भी नहीं लगता है कि यस ये आंख में अंधापन है और ये देखती नहीं है और ये एक पत्थर की आंख है। हाँ, बहुत साल पहले जब हम एम्स में थे तो कुछ क्वालिटीज ऐसी होती थी कि यस आर्टिफिशियल आई एक सस्ती सी आंख मटेरियल से बनती थी और उसमें हाथ से पेंट किया जाता था और उस हाथ की पेंटिंग से मैचिंग की जाती थी। तो भगवान की बनाई हुई आंख को हम बहुत नहीं मैच कर पाते थे। बट आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गई हैं और उन टेक्नोलॉजीज के थ्रू ये आर्टिफिशियल आई बहुत हद तक मैच करके बनाई जाती है, कस्टमाइज करके बनाई जाती है। तो लोगों को अनफॉर्चुनेटली यस अगर किसी को भी ऐसी कंडीशन है, उनमें एक्चुअली ये भी देखा है कि ये आंख अगर इस कॉस्मेटिकली, इनफैक्ट इस पे एक प्रॉपर रिसर्च स्टडी कर चुके हैं हम कि जिन लोगों की ऐसी आंख होती है जिसमें वाइटनेस आ गई या फेस एकदम बिल्कुल भद्दा सा लगने लगता है, उनमें बहुत ज्यादा हीन भावना आ जाती है। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है। विजन नहीं है वो अलग बात है, बट उनके अंदर इतनी हीन भावना आती है, वो अपने आप को एक अंदर बंद कमरे में और बाहर निकलना नहीं चाहते। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, स्पेशली जैसे एक लड़की थी जिसकी एक आंख खराब थी, शादी वादी तो सोच ही नहीं रहे थे, बट वो इतनी हीन भावना, स्कूल भी नहीं जाती थी। इस आई के लग जाने के बाद जब उसको कॉन्फिडेंस जो आया एंड उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया, वो बाहर निकलना शुरू हो गई, उसको दूसरी आंख से दिखता था, उसकी स्कूलिंग पूरी हुई है और अब वो जॉब कर रही है और पेरेंट्स पीछे अभी उसके मिले और वो बात कर रहे थे कि अब इसकी शादी भी करेंगे और ऐसे होगा। तो यस हम बता के करेंगे कि इसकी एक आंख आई ऐसी है, बट ये एक लाइफ चेंजर भी होता है। तो किसी की भी कॉस्मेटिक अपीयरेंस अगर इस तरह से हो, वो उसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो चेंज आता है वो क्रिएट किया जा सकता है। तो आई थिंक अगर किसी को भी एक दूसरे को भी कभी देखें और लगे तो उसको जरूर सजेस्ट करें कि अब ऐसी चीजें आती हैं जिससे आपको बिल्कुल नॉर्मल लुकिंग आई की तरह करा जा सकता है। हालांकि उसमें विजन नहीं है, उसका पर्पस कॉस्मेटिक है सिर्फ, बट मेंटल हेल्थ के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकित, कोई और सवाल मन में? यस, एक्चुअली मैं खुद यूज करता हूँ जो आप बता रहे हो कॉस्मेटिक आईज है। मेरी एक आंख वाइट है और वो एक छोटी सी होती है बिल्कुल आईज की तरह की, पतली झिल्ली की तरह, वो हम लगाते हैं। मैं लगाता हूँ उसको। तो मेरे मन में एक सवाल ये था कि
रेगुलर लगाने से या कुछ गैप में लगाने से या कुछ आवर लगाने में कोई प्रॉब्लम, ये उन लोगों के लिए है जो अभी यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो दिन भर लगाता हूँ, रात में उतार देता हूँ, बट फिर भी कोई इसका साइड इफेक्ट कुछ ऐसा जो लोग इसको समझ पाए। हाँ, अंकित, आपके केस में अगर आप वो प्रोस्थेटिक कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी कॉर्निया ऑलरेडी एक डैमेज्ड कॉर्निया है और उसके ऊपर ये कॉस्मेटिक लेंस, आपको डॉक्टर से पूरा कांटेक्ट में रहना चाहिए, नहीं तो इवन वी कैन हेल्प यू आउट। आपके जो केयर सॉल्यूशंस, अपने लेंसेज को जिस तरह से आप रात को स्टरलाइज करते हैं, सुबह पहनते हैं, और कभी भी रेगुलर चेकअप कराते रहिए ताकि आपकी डैमेज कॉर्निया पे डैमेज ना हो। इसकी एक लाइफ होती है कॉन्टैक्ट लेंस की, इसके एक वेयरिंग आवर्स होते हैं। दे आर वेरी सेफ। कॉन्टैक्ट लेंस बहुत सेफ डिवाइस है, बट केयरलेसनेस, जैसे आपने बिना हाथ धोए अगर लेंस पहन लिया तो हाथ में आप इन्फेक्शन आई में कैच कर सकते हैं, और उससे भी ब्लाइंडनेस और ऐसी चीज नहीं है, बट कुछ सेफ्टी मेजर्स जो हैं आपको प्रॉपरली फॉलो करने होते हैं जब ये कॉन्टैक्ट लेंस एडवाइस किया जाता है। सुमित सर, एक जो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो हमारे जितने साथ इस टाइम लोग सुन रहे हैं या जब भी लोग सुनेंगे, तो एक जब भी इस तरह की ट्रीटमेंट की बात आती है तो ऑब्वियसली एक आज के टाइम में आप हर जगह आपको छोटे बड़े क्लिनिक्स, हॉस्पिटल सब मिल जाता है। तो हॉस्पिटल की जो ऑथेंटिसिटी है या जो आई स्पेशलिस्ट है, उसमें जब कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने हैं या आपको कोई आर्टिफिशियल आई के लिए काम करना है या कुछ भी आप सोचते हैं, तो एक आम इंसान जिसे शायद इतनी जानकारी ना हो, वो किस तरीके से अप्रोच कर सकता है कि वो ठीक जगह पे पहुंच पाए? कुछ सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं इसके लिए? नरेश, इसके लिए ये तो बहुत सीधी चीज है कि सबसे बड़ी बात कि आप जो है, अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं या फिर किसी मान्यता प्राप्त और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। दिक्कत यहाँ पे होती है, स्पेशली मेरा जो खुद का हमारे जो अनुभव है, वो वैसे ये जो अप्लाई करता है ये सारी हेल्थ फील्ड्स में करता है। बेसिकली आई में जो है, लोगों को लगता है कि अगर हम अपने मोहल्ले में या अपने लोकेलिटी में या आसपास अगर हम किसी चश्मे की दुकान पे गए और उसने हमें बैठ के शीशे के आगे पढ़ा दिया कि ये पढ़िए, गिनती पढ़िए ऊपर से नीचे तक, तो हमारी आंख की जांच हो गई और सब ठीक हो गया, यानी हमारी आंख की जांच हो गई है। ठीक है, उनको ये फर्क समझना पड़ेगा कि एक आंखों का नेत्र रोग विशेषज्ञ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या है, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या है, और ऐसे कौन से लोग हैं जो सिर्फ क्वैकरी कर रहे हैं। क्वैकरी आप समझते हैं कि वो किसी डिग्री से डॉक्टर नहीं होते जी, ना ही वो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। बस वो 3-4 चश्मे रखे और 2-4 दवाइयां ऐसे ही रख दी, और उसमें बहुत सारी हार्मफुल दवाइयां भी वो लोग रख सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक के साथ स्टेरॉइड्स रख देते हैं जिससे ग्लूकोमा हो जाता है। तो ये चीजें तो आपको मतलब खुद ही देखना पड़ेगा कि आप कहीं विजिट कर रहे हैं किसी आई स्पेशलिस्ट के पास, तो उसके क्रेडेंशियल्स आपको पता चल जाते हैं कि हाँ भाई डिग्री कैसी है और क्या है। तो ऐसे ही मतलब किसी, और सबसे बेस्ट है कि आप किसी हॉस्पिटल सेटिंग में जाइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ऐसा कोई क्वैक तो बैठ ही नहीं सकते, और हमारे अगर दिल्ली के लिसनर्स हैं तो दिल्ली में तो बहुत अच्छे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत अच्छा सेटअप है, हरियाणा में भी बहुत हैं, और सब जगह होते हैं। तो यही एक सावधानी है जो हमें बरतनी चाहिए। बाकी कौन अच्छा है प्रैक्टिशनर, कौन कैसा है, वो तो सबका, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है, और सबके अपने अपने अनुभव, सबके अलग अलग नेत्र रोग विशेषज्ञ के साथ अलग अलग अनुभव भी हो सकते हैं, क्योंकि बीमारी अलग अलग है, सबकी आंखें अलग अलग हैं, और सबका एक एटीट्यूड और परसेप्शन भी अलग होता है इलाज के प्रति। तो अनुभव अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सावधानी अगर आपने पूछा, तो किसी अनुभवी और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ही जाएं, केवल आंख के लिए ही नहीं, सभी बीमारियों के लिए। मतलब किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करें, और सिर्फ अगर चश्मे की दुकान है, उसमें कोई ट्रेन प्रोफेशनल नहीं है, कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं है, कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है, तो वैसे ही जगह को आंख के इलाज के लिए अवॉइड करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सर ने सही कहा। ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए भी पूछा क्योंकि जो लोगों के मन में एक हमेशा जो एक चीज़ मैटर करती है, वो शायद मनी होती है कि जब आप
हॉस्पिटल जाएंगे या बड़े हॉस्पिटल जाने की सोचेंगे तो आप बहुत सी बातें सोचते हैं। तो हमें लगता है कई बार कि हम अपने पास के क्लिनिक में चले जाएं, दुकान पे चले जाएं, वहाँ पे एक बात बाती है। और आज मैं और अंकित हम दोनों आपके साथ हैं रेडियो उड़ान पे, और हमारे साथ दो हमारे एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर मोनिका चौधरी और डॉक्टर सुमित ग्रोवर, जो हमारे साथ इस टाइम सुशांत यूनिवर्सिटी से हैं और वर्किंग हैं। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है दोनों के पास। हमारे साथ आज बातें शेयर कर रहे हैं। हम 35वां नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप चाहें तो बिल्कुल हमें लाइव शो में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी आईडी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर इस पर्टिकुलर शो के लिए 9015173846 पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। Dear all, celebration of 35th National Eye Donation Fortnight 2020. The National Eye Donation Fortnight is observed every year from 25th August to 8th September. It is a campaign which aims to create mass public awareness about the importance of eye donation and to motivate people to pledge their eyes for donation after death. This year, we are celebrating 35th National Eye Donation Fortnight 2020. Corneal blindness is one of the leading causes of blindness in the world. According to World Health Organization reports, approximately 5% of the world population is blind due to corneal diseases alone. There is a need to bridge the demand and supply gap of corneal tissue, as the only known treatment to corneal blindness is corneal transplant. By donating eyes after death, a corneal blind person can see again through a surgical procedure known as corneal transplantation, whereby the damaged cornea is replaced by a healthy cornea from the eye donor. There are numerous reasons as to why people do not donate their eyes. Lack of awareness among the general public is one of the important cause. Radio Udan presents on this occasion special talk and discussion on this topic by our guest speakers, Dr. Sumit Grover. He is an eminent ophthalmologist, currently is Associate Professor and Program Director at Department of Optometry and Vision Sciences, School of Health Sciences, Sushant University. He will be there along with Professor Monica Chaudhary, Director, School of Health Sciences, Sushant University, Gurgaon. Our guest speakers would take queries regarding the topics like irregular corneas and their management and contact lenses. You can also send your questions in text, audio or video format and your latest report in advance through WhatsApp number 9015173846. I repeat 9015173846. You can even log in to our website for more information, which is www.radioudan.com. Radio Udan, A flight of life. Happy listening. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है स्पेशल प्रोग्राम आई डोनेशन पे। हम वापस आ गए हैं, आरजे अंकित और मैं, हम दोनों आपके साथ हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित ग्रोवर और डॉक्टर मोनिका चौधरी हमारे साथ हैं, लगातार बने हुए हैं लाइव शो में, और हम आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और एडवांस में थैंक यू कह रहे हैं अपनी पूरी टीम की तरफ से। इतना सारा वक्त आप हमें दे रहे हैं, क्योंकि डे में आप अपने हॉस्पिटल में और अपने वर्क में, उसके साथ हमारे साथ। मैं चाहूँगा कि सुमित सर, हमारे पास जो एक दो सवाल थे, मेरे ख्याल से दीपक का एक सवाल था, बहुत मेरे ख्याल से बेसिक सा क्वेश्चन है जिसका शायद हमें रिप्लाई करना चाहिए। दीपक ने पूछा है कि सीसीडी में मैनेजर हैं और अपनी आईज डोनेट करना चाहते हैं तो उनको कैसे कर सकते हैं, और काफी देर रीडिंग करने पर उनको थोड़ी सी आंख में परेशानी होती है। हाँ, वो कुछ कहते हैं कि मतलब डॉट सा शो होता है, डॉट दिखाई देती है, डॉट नजर आता जी। ठीक है, थैंक यू दीपक। आपने रेडियो उड़ान पे सवाल किया और आपके मन में ये प्रेरणा है कि आप आई डोनेट करना चाहते हैं। तो देखिए, इसका जो प्रोसीजर है बहुत सिंपल है। जीते जी तो कोई अपनी आंख डोनेट नहीं कर सकता। जो इन कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है आई डोनेशन के लिए संकल्प लेना। संकल्प लेना बहुत जरूरी है कि जैसे आज हमने संकल्प लिया कि मैं जो है मरणोपरांत अपनी आंख डोनेट करूंगा, तो भगवान हम सबको ठीक रखे, लंबी उम्र दे, बट जो जीवन की सच्चाई है वो तो है ही। तो इसका बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये कॉर्निया डोनेशन है ये 100% वॉलेंटरी होती है। दूसरा, आप जीते जी सिर्फ संकल्प लेते हैं, और कॉर्निया डोनेशन सिर्फ मरणोपरांत ही हो सकती है। और
कॉर्निया मार्केट में खरीदी या बेची नहीं जा सकती। ओके। ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन एक्ट इस पे लागू होता है और इसका किसी भी तरीके से खरीद फरोख्त जो है वो कानूनन अपराध है और इसमें जेल का प्रावधान है और ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। दूसरी बात ये कि आप इसका जो प्रोसीजर वो बहुत सिंपल होता है। मरणोपरांत जो डिसीज्ड है उनके नेक्स्ट किन या जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं वो अगर 1919 पे कॉल करेंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ 1919 पे कॉल करेंगे जी। तो वो जो नंबर है ये पूरा हमारा नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। तो जो आपका नजदीकी आई बैंक है ये नंबर आपको उससे डायरेक्टली कनेक्ट करा देगा 1919 और वहां से स्टाफ आकर विद प्रॉपर प्रोटोकॉल आपकी जो डिसीज्ड रिश्तेदार है उसकी कॉर्निया जो है वो ले लेगा। और ये सिंपल बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। जैसे कि शुरुआत में प्रोफेसर मोनिका ने बताया कि इसके साथ बहुत मिथ्स जुड़ी हुई हैं जी। तो इस दीपक के सवाल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मिथ्स ये हैं कि लोगों को लगता है कि अगर हम कॉर्नियल डोनेशन अपने रिश्तेदार की करना चाहेंगे तो वैसे भी हम दुखी हैं, ऊपर से इसमें जब हम किसी को यहाँ बुलाएंगे तो वो तामझाम होगा या हमें डेड बॉडी को कहीं लेके जाना पड़ेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। और अगर हमने आंख डोनेट की तो जो आंख खाली हिस्सा है वो तो अंतिम दर्शन के लिए भी बहुत बुरा लगेगा। तो मैं इन मिथ्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉर्निया डोनेशन है ये जो रिट्रीवल है ये कहीं भी हो सकता है। जहाँ मृत्यु हुई है, घर में, अस्पताल में, मॉर्चरी में जी, कहीं भी आके कॉर्निया रिट्रीव हो सकती है। केवल 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है और कोई डिसफिगरमेंट नहीं होती। जहां से कॉर्निया निकाली जाती है आंख से उधर एक शेल लगा दिया जाता है जिससे जो रिश्तेदार हैं जो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं उनको कोई ऐसा बुरा नहीं लगता, जो जगह आंख की खाली नहीं होती जी। इसमें कोई ज्यादा खून वगैरह भी नहीं निकलता, तो ऐसा कोई तामझाम भी नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। तो ये सारे मिथ्स हमें खत्म करनी चाहिए। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, सिर्फ संकल्प लेना है और आप अपने जो नजदीकी रिश्तेदार हैं उनको हमेशा ये बता के रखिए कि मैंने नेत्रदान का संकल्प लिया है और जब भी वो टाइम आएगा, वो घड़ी आएगी तो आप जो है मेरा जो संकल्प है पूरा कीजिए। और 1919 हमारी नेशनल हेल्पलाइन है, इस पे आप कॉल करेंगे तो हो जाएगा। कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है आपको, अभी कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। जो भी होगा वो उस समय होगा और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है ये। मोनिका मैम, एक सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था वो इस आई डोनेशन के रिगार्डिंग, अभी दीपक का एक क्वेश्चन छोटा सा बचा हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। आई डोनेशन की बात करें तो जैसा कि जो लोग, जैसा ये मैसेज में था हमारे पास कि जो लोग ब्लाइंड हैं या जिनको दिखाई देता है वो भी अपना कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको ऐसा कौन सा चेकअप कराना पड़ेगा या ये उनको किस तरीके से पता चलेगा कि वो भी अपना कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं अगर उनको दिखाई नहीं देता है? फिर भी कॉर्निया किसी का भी डोनेट हो सकता है। हाँ, उसमें कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जिससे डेथ हुई है, जिसके केस में वो कॉर्निया डोनेशन नहीं किया जाता। जैसे कि हेपेटाइटिस है या कैंसर है या एड्स है या ऐसी इवन कोविड के अंदर भी अभी कॉर्निया डोनेशन, क्योंकि स्टडीज रिसर्च नहीं है कि कोविड में भी अभी डेथ से हम कॉर्निया डोनेशन नहीं लेते हैं। सो इट इज बेसिकली वो टाइप ऑफ डिसीज जिससे डेथ हुई है उसकी वजह से है। अदरवाइज सपोज कोई पेशेंट ब्लाइंड है और उसको दिखता नहीं है बट उसकी कॉर्निया हेल्दी है, वो बिल्कुल डोनेशन करा जा सकता है और किसी भी एज की कॉर्निया ट्रांसप्लांट डोनेशन की जा सकती है। उसमें ऐसा होता है कि बहुत अगर बुजुर्ग है 80-90 साल के तो हो सकता है उनकी कॉर्निया उतनी हेल्दी ना हो, बट उसमें फिर कॉर्निया डोनेशन करने के बाद कॉर्निया आई बैंक जो होता है उसकी ग्रेडिंग कर देता है और डिफरेंट टाइप के ट्रांसप्लांट्स में, डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस में वो यूज की जा सकती है। सो ब्लाइंड पेशेंट कॉर्निया जिसका हेल्दी है वो बिल्कुल कॉर्निया डोनेशन कर सकता है। हाँ, जब वो आपके घर में रिट्रीवल के लिए आएंगे वो आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं कि इनकी डेथ का कॉज क्या क्या था। उन डिसीजेस में से अगर कोई लिस्ट में डिसीज होती है तो फिर वो कॉर्निया डोनेशन के लिए फिट नहीं होता है।
नरेश, मैं इसमें बहुत सारी और 2-4 चीजें ऐड करना चाहूंगा जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ है, हमारी आंख में जो है मोतियाबिंद निकाल के लेंस डला है, क्या मैं आंखें डोनेट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, क्या मैं डोनेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको चश्मा लगा है, पास का दूर का जैसा भी, आप आई डोनेशन बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। जैसे प्रोफेसर मोनिका ने बोला कि बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, या आंखों का कैंसर है, या अभी जो कोविड-19 है, इसमें आप नहीं कर सकते। और अगर कोई ब्लाइंड है, जिसका रेटिना खराब है, ऑप्टिक नर्व डैमेज है, लेकिन उनकी जो कॉर्निया हेल्दी है, वो भी डेफिनेटली इसकी कॉर्नियल डोनेशन कर सकते हैं। इसमें कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके मन में भी कुछ मिथ्स हैं तो उनको निकाल दीजिए कि आई डोनेशन की जा सकती है, और उसके बहुत सारे तरीके हैं और बहुत प्रोसीजर जो बहुत सिंपल है। डॉक्टर सुमित, जो दीपक का एक और क्वेश्चन था कि जब वो बहुत देर तक रीड करते हैं तो उनको एक डॉट नज़र आता है। बिल्कुल, दीपक का ये सवाल लेने के बाद मैं जो है कॉर्नियल डोनेशन के मिथ्स के बारे में और कुछ बताना चाहूँगा कि क्या क्या समाज में हमारे प्रेवलेंट है, और उसका कुछ मैं अपना बताना चाहूँगा। बाकी दीपक, आपका जो सवाल है कि काफ़ी देर रीडिंग करने के बाद आँख के आगे एक डॉट नज़र आता है, देखिए कि कुछ जो भी हम ब्राइट लाइट को देखते हैं, अगर ब्राइट लाइट को देख के अगर आप किसी प्लेन सरफेस को देखें तो उसको फिजियोलॉजिकल स्कोटोमा कहते हैं, कि आपकी आंख के आगे एक छोटा सा काला सा बिंदु बन जाता है। जो आप प्लेन सरफेस को देखेंगे तो वो दिखेगा, और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। जी। दूसरा, आंखों के आगे ऐसे काला बिंदु या काली मक्खी जैसा जो कॉटन जैसा कुछ उड़ना, इसको हम आंख का फ्लोटर्स कहते हैं। ओके। अगर आपका चश्मे का नंबर माइनस में बहुत हाई होता है तो ये फ्लोटर्स ज्यादा बनते हैं आंख में। बेसिकली हमारी आंख के अंदर जो जेल होता है वो समय के साथ, एज के साथ थोड़ा डिग्रेड होने लगता है, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि जब वो किसी स्पेशली प्लेन सरफेस की तरफ देखता है या बहुत देर कंसंट्रेट करने के बाद कहीं और देखता है तो उसे वो काले बिंदु दिखाई देते हैं। तो एक बार अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाके अपनी रेटिना की जांच करा लें, जो हमारी आंख का पर्दा जिसको बोलते हैं। अगर रेटिना ठीक है तो फिर ये काले बिंदु जो आपको दिख रहे हैं, इनको बिल्कुल नजरअंदाज कीजिए। जितना आप उन पे ध्यान देंगे उतना आपको और नजर आएंगे, जितना आप उनको नजरअंदाज करेंगे वो खत्म हो जाएंगे। और अचानक से आपको ऐसे लगे कि आंखों में बिजली सी चमकने लगी है या बिंदु एकदम बढ़ गए हैं, तो तुरंत अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। और अगर एक आध बिंदु है, कभी कभी नजर आता है, तो उसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें और उसको बिल्कुल जो है नजरअंदाज कर दें। जी हाँ जी। तो बाकी नरेश, मैं थोड़ा सा समय लेके और थोड़ी मिथ्स जो इसके साथ जुड़ी हैं कॉर्नियल डोनेशन के साथ, जी, और ये बिल्कुल सच्ची हैं, और हमें लगता है कि सिर्फ आम आदमी के मन में मिथ्स होती हैं, लेकिन कुछ स्टडीज ऐसी हुई हैं जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग जो आंखों के डॉक्टर्स को छोड़ के बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो भी बड़ा इनिबेटेड थे आई डोनेशन के लिए। और एक मान्यता जो है वो समाज में प्रचलित है कि अगर आप इस समय जो है अपनी आंख डोनेट करेंगे तो आप अगले जन्म में नेत्रहीन पैदा होंगे, क्योंकि आप अपनी कॉर्निया को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट ये भी, अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हम ये भी सोच सकते हैं कि जो लोग नेत्रदान करते हैं वो अगले जन्म में उनकी आंखें अच्छी होती हैं, और जो नहीं कर पाते उनकी हो सकता है आंखों में प्रॉब्लम हो। तो ये एक और चीज है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो कॉर्निया जो है वो 6 घंटे तक इस्तेमाल की जा सकती है। यानी अगर आपने कॉर्नियल डोनेशन करना है जी, तो आप 6 घंटे मृत्यु के बाद भी 6 घंटे के अंदर कॉर्निया 6 से 8 घंटे के अंदर हम रिट्रीव कर सकते हैं। ओके। तो ऐसा क्या हमारे भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने और कुदरत ने बनाया कि 6 घंटे तक हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मृत्यु हो गई तो कॉर्निया भी मृत हो जानी चाहिए डेथ के बाद, बिल्कुल, लेकिन वो 6 घंटे तक लाइव रहती है। वो शायद ये भगवान, अल्लाह, गॉड का एक संकेत है कि मैंने इस कॉर्निया टिश्यू को 6 घंटे के लिए अलाइव रखा है, मैंने आपको मौका दिया है कि आप ये टिश्यू जो है किसी और इंसान की आंख में लगा सकते हैं और उसकी आंख में उजाला कर सकते हैं। और सोचिए कि आपके 2 कॉर्निया से 2 अलग अलग नेत्रहीन व्यक्तियों को जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से प्रभावित हैं उनको रोशनी मिलेगी,
जी। और जैसा कि प्रोफेसर मोनिका ने बताया, आजकल तो ऐसी टेक्निक आ गई है कि कॉर्निया की जो लेयर खराब है केवल उसी लेयर को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो यानी अगर एक व्यक्ति की कॉर्निया है, एक कॉर्निया है, तो उसका ऊपरी भाग जो है वो किसी और प्रोसीजर के लिए, डाल्क के लिए यूज किया जा सकता है, और जो उसका निचला भाग है एंडोथीलियम, वो डीसेक्ट एक ट्रांसप्लांट होता है जिसमें केवल नीचे के एंडोथीलियम को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ये कॉम्पोनेंट्स ट्रांसप्लांट भी आजकल बहुत होने लगे हैं। तो आपके एक टिश्यू से हो सकता है कि 4 से 5 लोगों का भला हो जाए जी। तो भगवान की तरफ से भी हमें ये संकेत है, और यही मैं अपना थोड़ा शेयर करना चाहता था कि जो ये मिथ है कि हम अगले जन्म में नेत्रहीन होंगे, ये बिल्कुल बेसलेस है। और ऐसे चीजों को अपने मन से हटाइए और नेत्रदान का संकल्प लीजिए। हमारे 2 एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित ग्रोवर और मैडम मोनिका चौधरी हमारे साथ हैं, और दोनों काफ़ी सारी जानकारी दे रहे हैं। सुमित सर, आपसे जब हमने लास्ट टाइम हमारा शो था ये 2018 का, तब भी हमारी एक लिसनर थी जिन्होंने एक आपको अपनी रिपोर्ट सेंड की थी, और उसके बाद उनको सॉर्ट आउट भी किया गया था जो भी उनके इश्यूज़ थे। आज भी उनका एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि ये लेट ब्लाइंड हैं, और इनकी क्वेरी के लिए जो इन्होंने क्वेश्चन मेरे पास पोस्ट किया, उसके बाद मैंने कुछ और जो लेट ब्लाइंड 1-2 लोग, मतलब आप मान लीजिए 2 या 3 ऐसे लोग हैं, इनका नाम शेयर कर दूं मैं। रुक्मणी वर्मा है जो राजाखेड़ा राजस्थान से हैं, और इन्होंने लेट ब्लाइंड 2014 में इनको डिजीज़ हुई थी, जिसकी वजह से ये बीमार हुई, इनकी आईसाइट गई। अब इनका सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कहती हैं कि अभी जो एक थोड़ी सी अजीब सी एक इशू आता है इनके साथ, जैसा दीपक ने कहा कि उनको एक वाइट डॉट नज़र आता है रीडिंग के बाद। ये कहती हैं कि जब मैं क्योंकि अभी आई साइड बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश करती हूँ किसी चीज़ पे या कुछ सोचती हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो एक रेड डॉट सा या कुछ रेड सा लगता है कि जो मेरे सामने है वो या बर्निंग है या कुछ भी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। ये मैंने जो आपको बताया कि 2-3 और लोगों से जो मैंने पूछा जो लेट ब्लाइंड थे, उनके साथ भी एक सेम ऐसा इशू कि उनको लगता है कि जब हम बहुत देर तक सोचते हैं या कुछ करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कुछ देयर इज़ समथिंग रेड डॉट कह लीजिए, या कुछ जल रहा है या कुछ ऐसा रेड टाइप। और ये मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं पूछा जानबूझ के जो टोटली ब्लाइंड हो, क्योंकि शायद वहाँ पे एक कलर का इशू आ सकता है, क्योंकि ये लोग लेट ब्लाइंड हैं तो इनको कलर नॉलेज भी है इसलिए। तो इसका भी कुछ रीज़न है, या मतलब ये हमें उनको लगता है खाली? देखिए, इसका नरेश बिल्कुल रीज़न हो सकता है, बिकॉज वो लेट ब्लाइंड है, उससे इसका कुछ वो कनेक्शन नहीं है। बाकी इस चीज को मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको जो प्रॉब्लम है वो फोटोप्सिया की जो है प्रॉब्लम हो सकती है जी। बाकी जो अगर इनका ब्लाइंडनेस का कारण जो है उस पर भी डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि आगे की आंख जो है वो खराब हो गई, लेकिन रेटिना के जो कुछ फोटो रिसेप्टर्स हैं वो अभी एक्टिव हैं। उनकी जब उनके अंदर जब कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, या फिर उसकी वजह से उनको कुछ ऐसा फ्लैशेस अंदर आंख के अंदर नजर आते हैं, तो वो एक साइंटिफिक कारण हो सकता है। अदरवाइज इसका कुछ मेन रीजन क्या है कि उनको सिर्फ रेड कलर ही क्यों नजर आता है, और वो भी तब जब वो किसी चीज को कंसंट्रेट करती हैं। बिकॉज अगर फोटोपिया है या ऐसा कुछ फ्लैश है जो कि रेजिडुअल, बिल्कुल माइन्यूट रेजिडुअल विजन की वजह से उनको हो रहा है, तो वो तो एक्सप्लेनेबल है जी। लेकिन अगर कंसंट्रेशन के बाद केवल रेड कलर उनको ऐसा नजर आता है, आई नो बहुत डिस्टर्बिंग होगा उनके लिए, लेकिन मुझे इसका कुछ ऐसा रीजन समझ नहीं आ रहा है, और बिना एग्जामिन किए इसके बारे में कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। मोनिका मैम, इसके कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या, जो हमने क्वेश्चन मैंने आपके साथ बात शेयर की है? हाँ, ये बेसिकली आई थिंक कई बार वहम या फंक्शनल केसेस भी कहे जाते हैं, बिकॉज ये सिम्टम बहुत वेग है। ये सिम्टम इतना वेग है कि इसके सेकेंडरी सिम्टम साथ में मिलाए जाए तभी ये डायग्नोज हो सकता है कि इसका प्रॉपर कारण क्या है। बट कई बार जैसे उन्होंने कहा कि वो इमेजिनेशन ऑफ द रेटिना है, उसका कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उसके साथ कुछ और उनको सिम्टम्स हो तो कोरिलेट किया जा सकता है। कई बार सीवियर हेडेक्स और माइग्रेन्स में भी इस तरह की हेलुसिनेशंस वगैरह होती हैं। सो
सिंपली इनके एक सिम्टम के ऊपर कमेंट करना आई थिंक इज नॉट राइट। इनका पूरा चेकअप के ही इसको कोरिलेट करके डायग्नोस किया जा सकेगा। जी सुमित, आपके पास मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और भी था जो हमारे पास पैमेला का था, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन उनका भी था, और वो क्वेश्चन क्या है वो आप ही बता पाएंगे क्योंकि वो मैंने भी नहीं देखा एक्चुअली। Okay, this was a question from Pamela Sabwani from Nairobi, Kenya. जी Her question was that if, some of the relatives in her family perhaps has retinitis pigmentosa, and perhaps that she wanted to ask that if corneal transplantation can help in sight restoration of her relative. So I want to make it clear, Pamela, that if there is a low vision or visual impairment or blindness due to retinitis pigmentosa, that means the retina of the eye is affected, and corneal transplantation cannot help in this case because if retina is affected, then corneal transplantation cannot help. It is just only can help or restore the vision in the patients where the cornea is affected by some injury or some infection, or it has become opaque. So we can remove the opaque cornea or the diseased cornea and replace it by the transparent one. But retinitis pigmentosa cannot be cured by corneal transplantation. So I would think like to add here, Dr. Sumit, यस मैम। कि retinitis pigmentosa, Pamela, it's actually a degenerative disease. Retina is just like a film of the camera. So जैसे कैमरा की फिल्म होती है वैसे ही रेटिना एक फिल्म है आई की जिसपे इमेज बनती है. So where the image is formed, and this is the image. If it is retinitis pigmentosa, that means the image is not forming on the retina. So cornea is the front window of the eye, and if that turns opaque, cornea transplant can help in getting the light into the eye. Now in this patient, retina is damaged. So if retina is damaged, retina transplant is still under the research, and अभी retina transplant successfully लोगों में नहीं होते हैं. But Pamela, you can be helped. Retinitis pigmentosa actually starts losing vision from sides. तो आपकी एक ट्यूबुलर या टनल विजन हो गई होगी जिसमें लो विजन डिवाइसेस हेल्प करते हैं. So we have lot of patients who are actually suffering from retinitis pigmentosa. Unfortunately, this disease starts at young age and not in childhood and later progresses. So there are devices now in the world. One device is made by Oxford University, their spin-out company, Oxite. You can even Google and even find them on the LinkedIn. I am the clinical advisor in India, and we had those devices which are special goggles which are meant for these retinitis pigmentosa patients or peripheral field loss patients. In fact, low vision devices. So सिर्फ ट्रांसप्लांट ही कई बार रास्ता नहीं होता है. देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑल्सो जो कि विजन को रिस्टोर करते हैं, बट रेटिना पीछे हेल्दी होना चाहिए. इनके केस में रेटिना इज नॉट हेल्दी. सो अल्टीमेटली अगर हम फ्रंट पार्ट को क्योर भी कर देंगे, ट्रीट करके क्लियर कर देंगे, इमेज अभी भी फॉर्म नहीं होगी. सो फॉर हर वी वुड सजेस्ट शी शुड लुक इनटू लो विजन डिवाइसेस. And इनके केस में light is very important. Dim light, night vision blindness इनमें आती है. इनको day time में better दिखता है. So what she should look at is कि night में light intensity को increase कैसे किया जाए, अंधेरे में ना जाएं, और इस तरह से certain devices are available जिससे अपनी पढ़ाई, अपना काम किया जा सकता है. So low vision device अभी Oxite, Oxford University, UK के devices हैं, and of course they cost lot of money because वो अभी UK costs पे मिलते हैं, but they are coming up with special prices countrywide, and it is much less in India. It is still in the range of 2,000 pounds to 6,000 pounds
फॉर इन यूके, बट यस इधर स्पेशल प्राइसेस पे इंडिया में ये लॉन्च करेंगे. एंड इफ यू परमिट, आई वुड लाइक टू ऐड कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जब तक हम बात कर रहे हैं कॉर्निया ब्लाइंडनेस की, इनफैक्ट एक स्पेशल टाइप के कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं जो कि इरेगुलर कॉर्निया, और जब ये कॉर्निया ओपेक है बट उसमें फिर भी थोड़ा सा अगर क्लियर जोन है जी, उसके बाद हम इनमें कॉन्टैक्ट लेंसेज एक स्पेशल टाइप के आते हैं जो कि मेरी स्पेशलिटी थी, जिससे हम विजन को ऑलमोस्ट हर पेशेंट में 6/6 या नॉर्मल कर देते हैं. तो जब भी सर्जन भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं उससे पहले वो ये ट्रायल जरूर किया जाता है कि क्या उसकी कॉर्निया को हम सिंपल एक स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंसेज देके रिस्टोर कर सकते हैं. इसमें एक डिफरेंट टाइप का हार्ड लेंस होता है या स्क्लेरल लेंसेज होते हैं जिससे पेशेंट्स की विजन को हम नॉर्मल कर देते हैं और कई बार कॉर्निया ट्रांसप्लांट की भी जरूरत नहीं पड़ती है. सो एनी सच पेशेंट जिसमें थोड़ी सी रेजिडुअल कॉर्निया में विजन है एंड आई को एग्जामिन करके ये लेंसेज आप कहीं पे भी इंडिया में रहते हैं, नियरेस्ट आई सर्जन के पास जाएं या ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएं और ये स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंस का ट्रायल जरूर करें, बिकॉज बहुत लाइकली है अगर आपकी विजन उसमें थोड़ी सी भी क्लियर है तो उसको एनहांस करके नॉर्मल की तरफ हम उस लेंस से क्रिएट कर सकते हैं. सुमित सर कुछ बताएं थोड़ा सा और इसके बारे में, जो हमने अपने मैसेज में भी लिसनर्स के साथ शेयर किया था कि हम कॉन्टैक्ट लेंस पे थोड़ी सी बात करेंगे, साथ में इरेगुलर कॉर्निया जो हैं उसके बारे में हम एक थोड़ा सा डिस्कस चाहते हैं कि थोड़ा सा और शेयर करें लोगों के साथ. बिल्कुल नरेश, आई वुड लव टू शेयर. जैसा कि प्रोफेसर मोनिका ने बोला कि इरेगुलर कॉर्नियाज होती हैं. इरेगुलर कॉर्निया का मतलब है कि जो हमारी पुतली की शेप है वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई. उसकी वजह से जो आंख में सिलेंडर का नंबर होता है, जो आम भाषा में हम उसे सिलेंड्रिकल नंबर बोलते हैं, वो बहुत हाई हो जाता है और पेशेंट को टेढ़ा मेढ़ा दिखता है. कुछ केसेस में जैसे कि मैडम ने बताया कि पूरी ओपेक नहीं हुई लेकिन हल्की हल्की सी डॉट्स हैं ऊपरी सतह पे ही कॉर्निया के जो है ओपेसिटी है, तो उसके लिए पूरा ट्रांसप्लांटेशन करने की जरूरत नहीं होती. वो हमें स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंस से ठीक कर सकते हैं. उसके अलावा जैसे कि किसी का कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन हुआ, अब कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में भी बहुत सारे टांके लगते हैं, 360 डिग्री टांके लगते हैं. तो वैसे तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन कई बार सिलेंडर नंबर आ जाता है क्योंकि टांके जब सूखते हैं तो वो कई बार घाव जो है वो अलग तरीके से सूख जाता है और उससे भी सिलेंड्रिकल नंबर आता है. तो ये सिलेंड्रिकल नंबर भी ये स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंसेज से ठीक किया जा सकता है. इसके अलावा कॉर्निया की एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं केराटोकोनस. ये एक बीमारी है जो कि बहुत मेरे हिसाब से काफी कॉमन है. इसमें जो है कॉर्निया की जो क्रॉस लिंकिंग है, यानी कॉर्निया की जो बनावट है उसमें कमजोरी आती है और उसकी कमजोरी के कारण वो आगे की तरफ थोड़ी सी बल्ज होने लगती है जी. यानी वो ऐसे गोलाकार ना होके, स्फेरिकल ना होके थोड़ा सा बल्ज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कम दिखाई देता है जी. तो उसके लिए भी ये जो स्पेशलिटी लेंसेज हैं जिसको हम रोज के नाम के ब्रांड से जानते हैं या और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, तो उससे उसको समतल किया जा सकता है और उसकी प्रोग्रेशन को खत्म करने के लिए क्रॉस लिंकिंग की जा सकती है. एक वो इलाज है. उसके बाद ये लेंस लगा के कॉर्निया की सतह को बिल्कुल प्लेन किया जा सकता है और पेशेंट को सिलेंडर नंबर से मुक्ति दिला के बिल्कुल नियर नॉर्मल विजन दी जा सकती है. तो कॉर्निया में अगर आपकी कॉर्निया इरेगुलर है, हाई सिलेंडर नंबर है या फिर केराटोकोनस जैसी कोई बीमारी आपको है, तो उसके लिए ये जो स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, जो स्पेशलिटी या एडवांस कॉन्टैक्ट लेंस हम इससे बोलते हैं, इसके लिए आप जो है अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलें और ज़रूर इसके बारे में जानिए. जहाँ तक इसकी कॉस्ट वगैरह का सवाल है, ये अभी इतनी महंगी इसकी कॉस्टिंग नहीं है. बाकी इस पे ज़्यादा जो प्रकाश है वो प्रोफेसर मोनिका दे सकती हैं कि ये कहाँ अवेलेबल होते हैं और पेशेंट कहाँ पे अप्रोच कर सकता है इसके लिए, और इसका एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या होता है वो इसके बारे में बता सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर सुमित. यस, इन फैक्ट एम्स
बड़े हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, जितने भी टर्शरी सेंटर्स, कॉर्निया के सेंटर्स हैं, उन पे ये लेंसेज मोस्टली अवेलेबल होते हैं। बट इसको फिटिंग करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है, एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट इसको कर सकते हैं, बट मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट्स, स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड पीपल जो हैं इसके बेटर एक्सपर्ट होते हैं। और इसमें स्किल चाहिए होती है। इसमें पेशेंट की आई के लिए अगेन ये लाइफ चेंजर होता है, और कॉस्ट इसकी वेरी करती है 5,000 रुपीज से लेके 70,000 रुपीज पर आई। बट आई थिंक पूरी विजन वापस देने के लिए ये कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। एवरेज हमने देखा है 5 to 10,000 रुपीज में 80 to 90% लोगों को हम उस आई में विजन रिस्टोर कर सकते हैं। कि नहीं, किसी केस का बहुत एडवांस्ड होता है जिसमें एडवांस टाइप का लेंस बनता है, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। बट इतनी कॉस्ट में इंपोर्टेड अच्छी क्वालिटी के भी लेंसेज से हम विजन वापस रिस्टोर कर सकते हैं। सो केराटोकोनस, और उसमें बहुत लोग जो केराटोकोनस के हैं उसका ट्रीटमेंट ही कॉन्टैक्ट लेंस है। इनफैक्ट ये वो नॉर्मल लेंसेज नहीं है जो लोग फैशन के लिए या कॉस्मेटिक पहनते हैं, ये स्पेशल लेंसेज होते हैं। बट इसमें बहुत स्किल चाहिए होती है, इसमें फिटर की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि उसको फिट कर। तो बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर की, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से शेयर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ वक्त और है जो हम आपके साथ कुछ बातें और शेयर करने की कोशिश करेंगे। और नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट 2020 हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर सुमित और डॉक्टर मोनिका चौधरी हमारे साथ हैं। Dear all, celebration of 35th National Eye Donation Fortnight 2020. The National Eye Donation Fortnight is observed every year from 25th August to 8th September. It is a campaign which aims to create mass public awareness about the importance of eye donation and to motivate people to pledge their eyes for donation after death. This year, we are celebrating 35th National Eye Donation Fortnight 2020. Corneal blindness is one of the leading causes of blindness in the world. According to World Health Organization reports, approximately 5% of the world population is blind due to corneal diseases alone. There is a need to bridge the demand and supply gap of corneal tissue, as the only known treatment to corneal blindness is corneal transplant. By donating eyes after death, a corneal blind person can see again through a surgical procedure known as corneal transplantation, whereby the damaged cornea is replaced by a healthy cornea from the eye donor. There are numerous reasons as to why people do not donate their eyes. Lack of awareness among the general public is one of the important cause. Radio Udan presents on this occasion special talk and discussion on this topic by our guest speakers, Dr. Sumit Grover. He is an eminent ophthalmologist, currently is Associate Professor and Program Director at Department of Optometry and Vision Sciences, School of Health Sciences, Sushant University. He will be there along with Professor Monica Chaudhary, Director, School of Health Sciences, Sushant University, Gurgaon. Our guest speakers would take queries regarding the topics like irregular corneas and their management and contact lenses. You can also send your questions in text, audio or video format and your latest report in advance through WhatsApp number 9015173846. I repeat 9015173846. You can even log in to our website for more information, which is www.radioudan.com. Radio Udan, A flight of life. Happy listening. वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं, मैं और अंकित आपके साथ इस स्पेशल आई डोनेशन की जो कैंपेन है, अवेयरनेस कैंपेन का जो एक स्पेशल हम प्रोग्राम कर रहे हैं आज आपके साथ, उसमें और आखिरी वक्त हम आपके साथ हैं। लास्ट के कुछ मिनट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें जो मैं चाहूँगा कि हम यहाँ से अपने शो को कंक्लूड भी करेंगे, और साथ में एक दो बातें जो मेरे मन में हैं आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा, डॉक्टर सुमित और मोनिका मैम से, कि ये जो कॉर्नियल डिजीज़ हैं, एक तो इनके रीजन्स किस तरीके से आप बताएंगे हमारे लिसनर्स को कि क्या क्या चीज़ें होती है, और इनका प्रिवेंशन क्या है, मतलब किस तरह से इनसे
बचा जा सकता है, कि ताकि लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आप क्योर करवाएं, कुछ चीज़ें हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल नरेश, दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के सबसे मुख्य रूप के जो कारण है, उसके लिए हम कुछ लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। जैसे कि हमारे कुछ त्योहारों में हम जैसे बम पटाखे जलाते हैं, क्रैकर, जो फायर क्रैकर इंजरी है, दीज आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। मैंने देखा है कि हर दीपावली की ड्यूटी पे, व्हेन आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, तो दीपावली की ड्यूटी पे फायर क्रैकर इंजरी से बहुत ज्यादा बच्चे जो है कॉर्निया ब्लाइंड हो जाते थे। तो हमें बच्चों को बचाना है उससे, उनको ऐसे पटाखों से ना खेलने दें। उसके अलावा हर दशहरे की ड्यूटी पे तीर कमान से इंजरी, क्योंकि बच्चों को हम तीर कमान दिला देते हैं, नोकीली चीजें दे देते हैं हाथ में, उनकी पेंसिल, कंपास, वो आंख में जब लग जाती है तो जो है कॉर्निया का परफोरेशन हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा होली पे जो हम एक दूसरे की आंख में गंदे गंदे रंग, टॉक्सिक कलर्स डाल देते हैं, तो उससे भी बहुत सारी केमिकल इंजरीज होती हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन है, जैसे पहले तो सफेदी में, आई थिंक व्हाइट वॉश में अभी डिस्टेम्पर है, पहले चूना इंजरी, या कुछ फैक्ट्रीज में जो वर्कर काम करते हैं तो चूना इंजरी बहुत कॉमन है आंखों में। और एक इम्पॉर्टेंट कॉज लास्ट में ये है कि अपनी मन मर्जी से अपनी आंखों में कुछ भी इलाज करना। जी। हमने ये भी देखा है कि डॉक्टर के पास जाते नहीं और टीवी पे कुछ भी देख के, मैंने एक केस देखा था जिसमें एक माता जी ने अपने बच्चे की आंख में जो है प्याज का रस और उसमें शहद मिला के आंख में डाल दिया और उसकी कॉर्निया सफेद हो गई। जी। तो अपनी मनमर्जी से ऐसे उल्टे सीधे इलाज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जो आई थिंक कॉन्टैक्ट लेंसेज से भी हो सकते हैं, जिसपे मैं चाहूंगा प्रोफेसर मोनिका जो है थोड़ा सा प्रकाश डालें। या इनफैक्ट डॉक्टर सुमित, मैं याद ही कर रही थी कि रिसेंटली एक केस ऐसे देखे थे जिसकी कॉर्निया पूरी ओपेक हो गई थी और बहुत अच्छी हाई फैमिली का लड़का था, कॉन्टैक्ट लेंस पहनता था, रात को फ्रेंड के घर रुक गया, पार्टी थी, और उसने वो वाटर जो है टैप वाटर कॉन्टैक्ट लेंस के साथ यूज कर लिया। उस टैप वाटर में कंटामिनेशन था जिससे उसकी कॉर्निया में अल्सर हो गया एंड उसकी आई ओपेक हो गई एंड ट्रांसप्लांट हैड टू बी डन। सो कॉन्टैक्ट लेंसेज को अगर मिसमैनेज किया जाए तो कॉर्निया ओपेसिटीज हो सकती हैं। और लास्ट एक दो केसेस, सिर्फ एवरीथिंग डॉक्टर सुमित हैज कवर्ड, जो रह गया है वो ये है कि कई बार लेसिक सर्जरी के बाद भी अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, बहुत रेयर होता है, बट यस उसमें भी कॉर्निया ओपेसिटी हो सकती है। सो अच्छे लेसिक सर्जन, गुड स्क्रीनिंग इस तरह से कराई जाए तो वहां भी सेफ्टी रखी जा सकती है। सो आई थिंक वी कवर्ड मोस्ट ऑफ द कॉज। आंख को बचाएं, सुरक्षित रखें, मले नहीं, डस्ट प्रिवेंशन, इन्फेक्शन, ये सब कंट्रोल करना है। नहीं मैम, इसमें बाकी जो चीज़ें कवर हो गई, मेरी और अंकित की एक चीज़ रह गई है, क्या हमारी जो डाइट हैबिट्स हैं उससे कोई फर्क पड़ सकता है क्या? विटामिन ए डेफिशिएंसी, ज़ेरोफ्थैल्मिया भी बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नरेश, वैसे तो आंखें जो है शरीर का हिस्सा है। अगर आपकी आंख, आपकी जो प्लेट है वो कलरफुल होगी, कलरफुल यानी उसमें अलग अलग रंग की, हरे पत्ते वाली, पीले पत्ते वाली, लाल सब्जियां हैं, तो वो पोषण जो है आपकी आंख को भी मिलेगा। जैसा कि प्रोफेसर मोनिका ने बोला, विटामिन ए, ये हमारी आंखों की सतह के लिए बहुत जरूरी विटामिन है। और जिन लोगों में विटामिन ए की कमी होती है, जैसे स्पेशली छोटे बच्चे जिनको मीजल्स है, चेचक है, साथ में विटामिन ए डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसमें कॉर्निया जो है मेल्ट होने लगती है जी। तो वो बहुत एक ऐसी बीमारी है जिसमें कॉर्निया में इन्फेक्शन होते हैं और कॉर्निया मेल्ट हो जाती है। तो अपने डाइट में विटामिन, वैसे तो हर मिनरल विटामिन का ख्याल रखें, पोषक बैलेंस डाइट लें, लेकिन विटामिन ए इज वेरी गुड फॉर आईज। और ये पपाया, कैरेट और मैंगो, बनाना, इन चीजों में विटामिन ए होता है, तो आप वो अपनी ऐड कर सकते हैं अपनी आईज के लिए। तो लिसनर्स, ये स्पेशली जो खाने पीने की बात थी, ये मेरे और अंकित के लिए थी। बाकी आप भी इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट थोड़ा इधर ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से मोस्टली हमने चीज़ें कवर कर ली हैं, काफ़ी सारी बातें हो गई हैं। और लास्ट में आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि कुछ डिटेल्स ऐसे शेयर कर सके जहाँ से लिसनर्स हमारे अगर डायरेक्टली आप लोगों से कांटेक्ट करना चाहें तो आप कोई अपनी ईमेल आईडी शेयर कर सकें,
जिनके थ्रू लोग अपने रिपोर्ट्स अगर शेयर करना चाहते हैं, अपने कुछ सवाल पूछना चाहें, अगर नॉर्मली जो हमारे लिसनर्स हैं वो रेडियो की स्काइप आईडी पे अपने क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, वहाँ से भी हम रिसीव करते हैं। साथ में हमने जो आपके साथ नंबर शेयर किया 9015173846, इस नंबर पे आप डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो भी आपके क्वेश्चन पिक किए जाएंगे। इसके साथ भी अगर आप लोग अपने कंक्लूडिंग मैसेजेस में आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि एक ईमेल आईडी जरूर हमारे साथ लिसनर्स के साथ शेयर कर दें, जहाँ पे वो डायरेक्टली आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल नरेश, अगर जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं उनकी कोई भी क्वेरीज है तो वो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं या आपके थ्रू कर सकते हैं। अगर उनको मुझे मेल करना है तो मेरा ईमेल आईडी है dr.sumitgrover@gmail.com। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, dr.sumitgrover@gmail.com। तो आपके कोई भी सवाल हैं, कोई आप रिपोर्ट्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और थोड़ी सी पेशेंस आपको रखनी होगी, लेकिन आपकी ईमेल का मैं जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी कंक्लूडिंग मेरे रिमार्क ये रहेंगे कि पूरे विश्व में जो है कॉर्निया ब्लाइंडनेस जो है 5% ऑफ द जो टोटल ब्लाइंडनेस है वो कॉर्निया की वजह से है जी। बहुत सारी समाज में भ्रांतियां हैं कॉर्नियल डोनेशन को लेके, तो उन भ्रांतियों को हमें दूर करना है ताकि कॉर्नियल डोनेशन बढ़े, और जो कॉर्निया ब्लाइंडनेस के लिए ट्रांसप्लांटेशन की डिमांड है और कॉर्निया की सप्लाई है उसमें जो गैप कम हो, और बहुत सारे लोग जो सिर्फ कॉर्निया की वजह से, कॉर्निया ना होने की वजह से, ना मिलने की वजह से एक अंधेरा जीवन जी रहे हैं, उनको ऐसा ना जीना हो। तो और जीते जी हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना है। तो एक जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है वो है जीते जी आंखों का ध्यान और मरने के बाद नेत्रदान। तो मेरी तरफ से ये सबके लिए मैसेज। बिल्कुल, अब मोनिका मैम की बात है, बारी आ गई है कि वो अपना कंक्लूडिंग मैसेज दें। इससे पहले अभी जो मैं अपने लिसनर्स के बात शेयर करना चाहता हूँ कि अंकित हमारे साथ फेसबुक पेज पे थे, फेसबुक ग्रुप पे भी थे, साथ में व्हाट्सअप भी चेक कर रहे थे, जहाँ पे अगर आपके कोई मैसेज होते तो ज़रूर उनको इंक्लूड किया जाता। साथ में इस पूरे शो का जो प्रमोशन था उसके लिए जो वीडियो और एडिटिंग जो थी वो आरजे अंकित ने हम सबके लिए की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैम, आपका कंक्लूडिंग मैसेज हमारे पूरे लिसनर्स के लिए। कंक्लूडिंग मैसेज, आज के शो को सुनने वाले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप खुद प्लेज करें आज ही, यस कॉर्निया को डोनेट करेंगे अपनी डेथ के बाद, और अपने किन को बताएं और अपने सभी रिलेटिव्स को इसके लिए जागरूक करें। क्यों? क्योंकि कॉर्निया ब्लाइंडनेस, इनफैक्ट 80% of the blindness in this world is preventable. 80% ब्लाइंडनेस प्रिवेंट हो सकती है, और दुख की बात है कि हमारे वर्ल्ड में जो ब्लाइंड लोग हैं उसमें से 80% ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस है, और कॉर्निया ब्लाइंडनेस बिल्कुल ट्रीटेबल है। इसको सिर्फ ट्रांसप्लांट या स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंस से ट्रीट किया जा सकता है। एक बहुत दुख की बात है, जहाँ इलाज है फिर भी वो लोग ब्लाइंड घूम रहे हैं। कुछ सेकंड्स के लिए अगर हम अपनी आंख को बंद कर लें तो शायद हम उसकी दुनिया को थोड़ा सा देख सकेंगे, उस अंधेपन का एहसास कर सकेंगे। वो डोनेशन और वो प्लेज उसकी आंखों को वापस ला सकता है। सो दैट्स द मैसेज। आज अगर हम सक्सेस अपनी टॉक को कहेंगे तो वो इसी तरह, जब हम ये कह सकें कि हर सुनने वाले ने कॉर्निया डोनेशन के लिए प्लेज किया। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये था हमारा आज का पूरा शो, पूरा डिस्कशन, पूरा सेलिब्रेशन जो हम आपके लिए लेकर आए थे। कि स्पेशल शो अपने 2 स्पेशल गेस्ट के साथ, पूरी टीम की तरफ से, सभी लिसनर्स की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सारा वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारी आंखें हैं ना केवल वो दिल की जुबान होती हैं, वो हमारी पूरी बॉडी की जुबान होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं पूरे शरीर की कि अगर आप आंखों की जांच अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन कराएंगे तो ब्रेन में क्या चल रहा है और आपके लिवर में क्या प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आंख की कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी जांच से ही पता चल सकता है। तो आंखें तो पूरी बॉडी की जुबान है और ये बहुत सारी चीज़ों का बयां कर देती है। एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पे अपने शो पे बुलाने के लिए। आई enjoyed it very well. Thank you Naresh, thank you Ankit, it was a thorough show. Yeah, thank you Ankit so much. Thank you so much. Welcome sir.
बिल्कुल, तो ये हमारा था स्पेशल शो जो नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट सेलिब्रेशन था 2020 का, और उसके साथ हम आपके साथ दोनों थे। हम दोनों भी आपसे विदा लेंगे और इस प्रॉमिस के साथ, इस उम्मीद के साथ कि फिर एक नए शो में हम दोनों आपके पास आएंगे, एक स्पेशल शो और अपने स्पेशल गेस्ट के साथ आएंगे। Till then, keep listening Radio Udan Flight of Life. Happy listening. Dear all, celebration of 35th National Eye Donation Fortnight 2020. The National Eye Donation Fortnight is observed every year from 25th August to 8th September. It is a campaign which aims to create mass public awareness about the importance of eye donation and to motivate people to pledge their eyes for donation after death. This year, we are celebrating 35th National Eye Donation Fortnight 2020. Corneal blindness is one of the leading causes of blindness in the world. According to World Health Organization reports, approximately 5% of the world population is blind due to corneal diseases alone. There is a need to bridge the demand and supply gap of corneal tissue, as the only known treatment to corneal blindness is corneal transplant. By donating eyes after death, a corneal blind person can see again through a surgical procedure known as corneal transplantation, whereby the damaged cornea is replaced by a healthy cornea from the eye donor. There are numerous reasons as to why people do not donate their eyes. Lack of awareness among the general public is one of the important cause. Radio Udan presents on this occasion special talk and discussion on this topic by our guest speakers, Dr. Sumit Grover. He is an eminent ophthalmologist, currently is Associate Professor and Program Director at Department of Optometry and Vision Sciences, School of Health Sciences, Sushant University. He will be there along with Professor Monica Chaudhary, Director, School of Health Sciences, Sushant University, Gurgaon. Our guest speakers would take queries regarding the topics like irregular corneas and their management and contact lenses. You can also send your questions in text, audio or video format and your latest report in advance through WhatsApp number 9015173846. I repeat 9015173846. You can even log in to our website for more information, which is www.radioudan.com. Radio Udan, a flight of life. Happy listening.